वी हैव डिस्कस्ड, हमने कल बात की थी लंग मेरिडियन के बारे में, हार्ट मेरिडियन एंड पेरिकार्डियम. And today we are going to learn liver meridian. Liver meridian, in the liver we are having liver 2, 3, 8 and 14 point. In the kidney meridian we are having kidney 3, 5 and 7 number. And in the spleen meridian we have spleen 6, 9, 10, 15. So some discussion will be today and some discussion will be tomorrow. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किडनी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द किडनी, बिकॉज इन द किडनी वी हैविंग ओनली 3 पॉइंट्स, केवल 3 बिंदु हैं. सो इन द किडनी वी विल डिस्कस किडनी 3, किडनी 5 एंड किडनी 7, 3 पॉइंट्स. वैसे तो किडनी में 27 पॉइंट्स होते हैं, किडनी 1 से लेके किडनी 27 तक. और हमने मेरिडियन की क्लास में तो हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है, 27 पॉइंट को समझा है. लेकिन यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल 3 पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. सो वही लॉगिन आईडी है, ग्रुप में डालिए, सभी लोगों ने उससे लॉगिन कर लिया ऑलरेडी. तो वही लॉगिन आईडी वही है जो मैंने ग्रुप में डाली है, सेम है, उसी से करना होगा लॉगिन आप. सो लेट्स स्टार्ट द किडनी 3. तो बिफोर प्रोसीडिंग आई विल टेल यू, हर मेरिडियन में 5 एलिमेंट्स के पॉइंट पाए जाते हैं. Like in every element, the first point is the Wood point. Like in the kidney meridian, we are having kidney 1 is the Wood point. The second point is the fire point. Like in the kidney meridian, the kidney 2 is the fire point. The third point will be earth point. Like in the kidney meridian, we are having kidney 3. And the fourth point will be metal point. Like in the kidney meridian, metal point, we have kidney 7. Or final, the water point. The water point will be kidney 10. तो किडनी मेरिडियन में ऐसे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, बट फ्रॉम द नी till the toes, from the knee till the toes, we are having the points of 5 elements. The point of first element will be near this area, that would be the wood. Then as we go up, then fire, then earth, then metal, then water. तो वाटर पॉइंट हमारे कहां पर होगा? पैरों की बात करें तो घुटने के ऊपर होगा. So in this way we can also make the cycle like this. So the first point will be wood, the second point will be fire, the third point will be earth, the fourth point will be metal and the fifth point will be water. तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स के 5 पॉइंट्स होंगे. अब अगर हम किडनी की बात करें, so the first point will be kidney 1, that is wood point. Second will be kidney 2, that is fire point. Third point will be kidney 3, that is earth point. Fourth point will be kidney 7 and the final point will be kidney 10. The most important point here is
किडनी 3 एंड किडनी 7। ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये दोनों है। ओके, नाउ इन द सेम वे if we talk about the spleen meridian, in the spleen meridian also we are having number 1, 2, 3, 4 and 5 point. So the first point will be wood, then fire, then earth, then metal, and the final point will be water. अगर हम स्प्लीन मेरिडियन की बात करते हैं तो स्प्लीन मेरिडियन का जो पहला बिंदु है, द फर्स्ट पॉइंट विल बी स्प्लीन 1, सेकंड पॉइंट स्प्लीन 2, थर्ड पॉइंट स्प्लीन 3, fourth point spleen 5, and the final point is spleen 9. So in the leg, spleen 1 will be near the toes and the spleen 9 will be near the knee. ऐसे ही किडनी की बात करें, so kidney 1 will be near the toes and kidney 10 will be near the knee. Okay, so the spleen 1 is the wood point, spleen 2 is the fire point, spleen 3 is the earth point, spleen 5 is the metal point, and the spleen 9 will be the water point. हर मेरिडियन में इस तरह से 5 बिंदु पाए जाते हैं. So each and every meridian having the 5 points. In the each and every meridian, we are having 5 and 5 points. So either we talk about the kidney, or we talk about the spleen, or we talk about the liver. हर मेरिडियन में 5 बिंदु पाए जाते हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So the first point will be wood, the second point will be fire, the third point will be earth, the fourth point will be metal, and the final point will be water. तो पहले जो बिंदु होते हैं हर मेरिडियन के वो वुड होते हैं. जैसे कि लिवर के लिए liver 1 will be the wood point, liver 2 will be the fire, liver 3 will be the earth, liver 4 will be the metal, and the liver 8 will be the water point. तो इस तरह से हमने जाना कि spleen 1, spleen 2, spleen 3, spleen 5, spleen 9, kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7 and kidney 10. तो हर मेरिडियन में जो पहले बिंदु है उन्हें वुड पॉइंट कहा गया है, दूसरे बिंदु ने फायर, तीसरे अर्थ, चौथे मेटल और पांचवे वाटर. The most important points are these third number point. These third number point. Why the third number points are most important? Because हमने समझा था the energy on the first point is like a bell. Then energy become the spring, like a spring. So energy become little more. Then is energy become like a stream, it become more. Then it become like a river, it is too much energy, and the finally it is becoming like a ocean, sea. तो जब भी ऊर्जा की शुरुआत होती है, पहले ऊर्जा छोटी छोटी जगह में कैद रहती है, कुएं के समान जगह में कैद रहती है, फिर वो झरने के समान हो जाती है, फिर वो एक बहती हुई कैनाल के समान, धारा के समान हो जाती है, फिर ऊर्जा का स्वरूप बढ़ता जाता है और वो नदी के समान विशाल रूप ग्रहण कर लेती है और अंत में समुद्र के समान इतनी विशाल हो जाती है कि जिसकी सीमा लांघना भी संभव नहीं. So in this way, these all the first point or wood point having energy like a bell, or we are telling them jingwe, like liver 1, spleen 1 and kidney 1. तो ये जितने भी फर्स्ट पॉइंट होते हैं like liver 1, spleen 1 and kidney 1, they are having energy like a small energy like a bell. The second point having energy, the second point of fire point having little more energy, the energy like a spring. So spring energy is little more.
So we are telling them यंग स्प्रिंग पॉइंट, अर्थात इन फायर पॉइंट्स के पास थोड़ी ज्यादा ऊर्जा है. एंड द थर्ड पॉइंट, द अर्थ पॉइंट हैविंग more energy, the energy like a stream. So they are having energy like a stream. So we are telling them su stream. The fourth point having energy too much big, too much huge. So the fourth point or metal point having energy like a river. So we are telling them Jing river. And finally, the last point or the water point having too much energy like a ocean, and we are telling हीसी पॉइंट, और इनको हम हीसी पॉइंट कहते हैं. तो जैसे हमारे जितने भी बिंदु हैं, लिवर वन, स्प्लीन वन, किडनी वन, इनके पास ऊर्जा है, छोटे सी जगह में कैद है. जैसे स्प्रिंग को दबाया और छोटी सी जगह में आपने कंप्रेस्ड करके रख दिया. देन द लिवर टू, spleen 2 and kidney 2, they are the fire point and spring point having little more energy. Then kidney 3, liver 3 and spleen 3, ये तीसरे स्ट्रीम पॉइंट है या अर्थ पॉइंट है. ये स्ट्रीम पॉइंट, इनके पास और ज्यादा ऊर्जा है. और चौथे बिंदु लाइक किडनी 7, लाइक स्प्लीन 5 एंड लाइक लिवर 4, ये मेटल पॉइंट है. इनके समान पास रिवर के समान विशाल मात्रा में ऊर्जा है. सो दे आर हैविंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड द फाइनल पॉइंट इज द वाटर पॉइंट और हीसी पॉइंट. ये जो फाइनल पॉइंट्स हैं जिन्हें वाटर पॉइंट, हीसी पॉइंट कहते हैं, जैसे कि लिवर 8, जैसे कि स्प्लीन 9, जैसे कि किडनी 10, जो घुटने के पास होते हैं, इनके पास अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मौजूद है. दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज amount of chi. So this is the measurement technique. Like Jing whale means having energy like a bale. So the first point is Jing whale having energy like a bale. The second point having energy like a spring. The third point having energy like a stream. The fourth point having energy like a river. And the final point having huge energy like a ocean. तो ये ऊर्जा को नापने के तरीके हैं कि कहां पर कितनी मात्रा में ऊर्जा है. जैसे कि पानी कहां पर कितना ज्यादा है, कहां पर कितनी ज्यादा ऊर्जा, उसको नापने का ये एक मेजरमेंट टेक्निक है. सो द जिंगवेल पॉइंट हैविंग द वेरी कंप्रेस्ड एनर्जी. सो इन दिस वे हम जैसे जैसे आगे जाते हैं, ऊर्जा और विशाल हो जाती है. एंड द मिडिल पॉइंट इज द स्ट्रीम पॉइंट. दिस इज द मिडिल पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट. So 2 points we are having earlier and 2 points we are having after the stream point. So the stream point having the characteristic of the previous point and the characteristic of the post point. यानी stream point एक ऐसा बिंदु होता है जिसके पास अपने पुराने बिंदुओं की भी गुणवत्ता है और आगे आने वाले बिंदुओं के भी गुण हैं. यही कारण है कि अगर आप सिर्फ एक स्ट्रीम पॉइंट लगाते हो, जैसे कि किडनी 3, जैसे कि स्प्लीन 3, जैसे कि लिवर 3, तो ये अकेले ही पूरे के पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर देते हैं. सो द किडनी 3 हैविंग कैपेबिलिटी टू बैलेंस द होल किडनी मेरिडियन. द स्प्लीन 3 हैविंग कैपेबिलिटी टू होल स्प्लीन मेरिडियन, बिकॉज दिस इज द थर्ड नंबर पॉइंट, बिकॉज these are the stream point. So on the one side they are the earth point and on the other side these are the stream point, and liver 3 is also having the capability to balance whole liver meridian. So this is the characteristic of stream point. स्ट्रीम पॉइंट के पास दो गुण होते हैं. द स्ट्रीम पॉइंट हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक. नंबर 1, दे कैन बैलेंस होल मेरिडियन. नंबर 2, दे आर वेरी गुड फॉर क्रोनिक डिसीज. वो क्रोनिक बीमारियों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, यानी पुरानी बीमारियों के लिए. आप पूछ सकते हैं कि फिर क्या होगा नई बीमारियों का, क्या होगा नए नए एक्यूट अटैक्स का. देन व्हाट अबाउट द न्यू अटैक्स, व्हाट अबाउट द न्यू डिसीज? देन Jigwell point. So the Jigwell point, the acute disease. For the acute disease, we will stimulate the Jigwell point, and the chronic disease, we will stimulate the stream point or third number point. और stream point को हम earth point भी कहते हैं. The stream point is also called earth point. So the most important thing is here, if you look at the leg, अगर आप पैरों को देखें, so you will find the stream point here. Look at here.
So look at the leg here. So this is the location of liver 3 in the legs. और ये हमारे बैक साइड में this is the location of kidney 3. This is the kidney 3. And this is the location of spleen 3. ये हमारे तीनों के तीनों stream point है. So spleen 3, kidney 3 and liver 3. Okay. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि these stream points of the legs also connected with the kidney. So the stream point of the leg also connected with the kidney. So suppose this is the liver 3. This is the spleen 3. And this is the kidney 3. And these all are getting energy from the kidney chi. So the kidney energy is coming to the liver 3. Kidney energy is coming to the spleen 3 and kidney energy also coming to the kidney 3. So these are also called ion source point. इसीलिए इनको हम ion source point भी कहते हैं. So they become very wonderful point because number one, they are source point. Number two, they are third number point are always good because they are stream point. And number three, they are earth point. So in this way, these third number point become very wonderful. Okay, let's see. Look at here. Now, look at the location of liver 2. Liver 2 is on the Babe margin. अगर हम liver 2 की location देखें, तो liver 2 कहाँ पर है? The location of liver 2 between the Babe margin of. Okay, let's complete first kidney. तो पहले हम kidney की बात करते हैं. Let's start. Look at the kidney first. सबसे पहले हम kidney 3 की बात करते हैं. The kidney 3. I told you the most important point. So look at here. In our syllabus, we are having only 3 points: kidney 3, kidney 7, and the kidney 5. So this is the kidney 5, this is the kidney 3, and this is the kidney 7. So let's discuss all the 3 points. So first we are discussing kidney 3. Kidney 3 is the source point. Kidney 3 is the earth point. Kidney 3 is the stream point. और हम जानते हैं kidney 3 is the kidney point. So kidney 3 जब kidney को ताकत देगा और kidney हमारी bones को ताकत देती है, इसलिए kidney 3 will become very good points for the bones. It will improve the bone density. The kidney 3 is very good for kidney nephritis and all the kidney disorder, all the problem connected with the kidney. जैसे कि आप बालों को उगाना चाहते हैं, सिर के बालों को, आप infertility को दूर करना चाहते हैं, आप kidney 3 की मदद ले सकते हैं. Now, from the kidney 3, if we go one chun down, अगर kidney 3 से हम एक चुन नीचे जाते हैं तो kidney 5 मिलता है and kidney 5 is the G cleft point. और G cleft point का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो इमरजेंसी में हमारे काम आते हैं. सपोज किसी को किडनी की इमरजेंसीज है. What is the emergency of kidney? One patient came to me in my clinic and I pressed this kidney 5 point. It was too much painful. तो एक पेशेंट को हमने जब किडनी 5 प्रेस किया तो इसे बहुत पेन मिला और हमें पता है कि यह हमारी किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट है और जी क्लेफ्ट पॉइंट ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें हम इमरजेंसी में यूज करते हैं. तो हमें डाउट हुआ और हमने जब सोनोग्राफी की तो पता चला कि इसको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है. द पर्सन इज हैविंग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट. तो किडनी 5 is connected with the kidney and we know kidney means genital organ. Kidney means bones. अगर मेल को यहाँ पर दर्द मिले किडनी 5 पर तो उसको जेनेटल प्रॉब्लम हो सकती है. फीमेल को यहाँ पर दर्द मिले तो उसको यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है. And if we stimulate the kidney 5, we can rectify this problem. And this point is just one chun down from the kidney 3. So how can we look at this point? Look at here. First, you have to locate the kidney 3. So this is the medial malleolus. This is the medial malleolus. And on the back side, this is the tendon. The name of this tendon is Achilles tendon. इस tendon का नाम है Achilles tendon.
So on the back side we are having Achilles tendon, in the front side we are having medial malleolus, in between we are having kidney 3, इन दोनों के बीच में हमारा kidney 3 है। अगर एचिलिस टेंडन से आप मिड पॉइंट ऑफ द मीडियल मैल्यूलस का बीच का बिंदु देखेंगे तो आपको किडनी 3 मिलेगा। सो किडनी 3 इज लोकेटेड हियर। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू गो वन चुन डाउन, दैट इज द किडनी 5। सो किडनी 5 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल टू लोकेट। सपोज we want to do the treatment of genital part, we want to do the treatment of anything which is connected with the kidney, like even nephritis, any kidney disease, then we can use kidney 5। चलिए अब हम बात करते हैं kidney 7 की। Now from the kidney 3, if we are going one chun down, so it is kidney 5, but we are going two chun up, that is the kidney 7। Kidney 7 is the very excellent point। The most importance of the kidney 7 is because it moves the water। किडनी 7 का जो सबसे मुख्य काम है यह है पानी को घुमा देना। So suppose someone is having swelling, so we can stimulate the kidney 7। In the swelling we can stimulate the kidney 7 because it will move the water, so it will reduce the swelling। So the any point who is doing the moving, how the any point doing the moving, so moving action is the action of yang। तो जब किसी का यांग बढ़ता है तो कोई भी चीज मूव होती है। तो किडनी 7 एक्चुअली क्या करता है, किडनी 7 इज द बेस्ट पॉइंट टू इंक्रीज द यांग। तो जब भी हम किडनी 7 को स्टिमुलेट करते हैं तो यांग बढ़ाता है। तो चाहे आंखों के नीचे सूजन हो, चाहे पैरों में, घुटने में, कमर में, पेट में, कहीं भी सूजन हो, हम किडनी 7 को स्टिमुलेट करके पूरे फ्लूइड को, लिक्विड को बॉडी में मूव कर सकते हैं, स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। सो द किडनी 7 इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मूविंग द यांग। So it is very good point for increasing the yang. So it is very good point for increasing the circulation. It is very good point for increasing and circulation and moving the yang. So हम किडनी 7 का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम किडनी 7 का प्रयोग करते हैं यांग बढ़ाने में। अगर किसी के शरीर का यांग कम हो गया हो तो किडनी 7 become very wonderful point। So suppose you want to improve the yang of anyone, so use kidney 3 and kidney 7 together। लेकिन आप किसी का सिर्फ यंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप केवल किडनी 3 का प्रयोग करिए, है ना। सो इन दिस वे दीज आर द 3 पॉइंट्स। सो नाउ फ्रॉम द किडनी 3 गोइंग 2 chun up, that is kidney 7। From the kidney 3 going 1 chun down, that is kidney 5। So this is the completion of kidney meridian। Now we are moving to the next। So now we are moving to the next meridian। The next meridian is our, let's take, so we have completed kidney 3। Now we will discuss the liver meridian। अब हम liver की बात करते हैं। liver में केवल 4 बिंदु हैं, liver 2, 3, 8 and 14। liver 2, 3, 8 and 14। So let's see here, look at here। So सबसे पहले हम बात करते हैं, first we are talking about the liver 2 point। So liver 2, now again I told you earlier that number 1, liver 1 is the wood point, liver 2 is the fire point, liver 3 is the earth point। Okay, number 2, liver 1 is the Jungwell point, liver 2 is the Ying spring point, and liver 3 is the Sioux stream point। तो liver 2 हमारा fire point भी है and liver 2 हमारा spring point भी है। So what is the meaning of this? Suppose if you stimulate the liver 2, it will decrease the fire from the liver। If there is a liver fire is high, suppose अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है तो एक्यूपंक्चर में हम बोलते हैं कि भाई इसकी लिवर फायर बढ़ गई है। और हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका बीपी भी बढ़ जाता है, क्योंकि एंगर का इफेक्ट हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आपको बीपी कंट्रोल करना है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, so you can stimulate the liver 2 and liver 3, both the points। So right now our target is liver 2। तो liver 2 point जब हम स्टिमुलेट करते हैं, जब liver 2 को सेडेट करते हैं और जब तो ये फायर को निकाल देता है। So liver 2 expelling the fire। So in this way when we expel the fire, it is decreasing the anger, it is decreasing the blood pressure। ये हमारे गुस्से को भी कम करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है liver 2। So liver 2 is the very good point।
और इट इज द फायर पॉइंट और यिंग स्प्रिंग पॉइंट। और कहां पर होता है द लिवर 2 पॉइंट, वी कैन सी हियर दिस इज ऑन द बेब मार्जिन, हमारे बेब मार्जिन पर होता है। सो फ्रॉम द बेब मार्जिन इफ वी गो हाफ चुन, just a 0.5 chun from the bay margin, then we are having the location of liver 2। हमारे बेब मार्जिन से सिर्फ हम आधा चुन ऊपर जाते हैं तो हमें ये लिवर 2 मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिवर 3। लिवर 3 पॉइंट कहां होता है? सो दिस इज द मेटाकार्पल बोन, दिस द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, sorry, first metatarsal bone, and on the another side this is the second metatarsal bone, and this is the union. So on the union we are having liver 3। So liver 3 कहाँ होता है? liver 3 found in the union of first and second metatarsal bone। हमारी जहां पर पहली और दूसरी metatarsal bone का यूनियन होता है वहीं पर हमारा liver 3 पॉइंट पाया जाता है। So you can see in this image, you can see very clearly. Now look at in this image. So you can see both the bones are uniting here। तो जहां पर दोनों बोन्स का यूनियन होता है वहां पर यह बिंदु पाया जाता है। So we can also measure in this way। So from the bay margin if you go half chun, 0.5 chun, तो आपको liver 2 मिलेगा। So you will find the liver 2 half chun, and from here if you go again near about 1 chun, then you will find the liver 3, तो आपको liver 3 मिलेगा। So liver 3 located on the union of first and second metatarsal bone। liver 3 point is very important point। Why? क्योंकि जब भी हम liver 3 point को स्टिमुलेट करते हैं, I told you that this is also reducing the blood pressure। तो बीपी को कम करने के लिए बड़ा ही शानदार बिंदु है। This is calming down the liver fire। ये हमारी लिवर की फायर को liver 2 और liver 3 दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। So liver 2 and liver 3 points are very effective for anger management, for blood pressure। ये दोनों बिंदु एंगर मैनेजमेंट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन बिंदु हैं, liver 2 and liver 3। So now liver 3 having another importance। अगर हम liver 3 की बात करें, so liver 3 point, liver 3 having one very good things like it move chi। सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन है बात बहुत बड़ी कि यही ची को ही तो मूव करता है। सो हमारी बॉडी में जब भी कोई दर्द होता है, दर्द होने का कारण है कि ऊर्जा का फ्लो नहीं हो रहा है, ऊर्जा अटक गई है, कहीं पर जकड़ गई है। इफ यू एबल टू मूव द ची, अगर आप वहां से ऊर्जा को घुमा दें, हिला दें, डुला दें, इफ यू रिमूव द ब्लॉकेज ऑफ द ची, अगर आप वहां से ऊर्जा के ब्लॉकेज को रिमूव कर दें तो दर्द चला जाता है। यही कारण है कि LI4 बायलैटरल, LI4 दोनों साइड में एंड लिवर 3 बायलैटरल दोनों साइड में अगर हम स्टिमुलेट करते हैं। सो LI4 also moving the chi, liver 3 also moving the chi। So this combination is called 4 gates, and this combination is very good for all types of sports injury। जब भी कोई गिर गया हो, पड़ गया हो, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने कई बार अनुभव किया, एक दिन एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया, एक फीमेल पेशेंट, और रास्ते में स्कूटी पर गिर गई और फिर वो घर गई और 1 घंटे के बाद आई। So she was having lots of pain because she fell down from the scooty। Then she was having lots of pain because of the fall down। Just we have stimulated these 4 points, liver 3 bilateral and LI4 bilateral, just for 20 minutes, and she felt 99% improvement। हमें एक्चुअली इन पॉइंट को सेडेट करना होता है। सो आइदर वी कैन सेडेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट और वी कैन पुट द निडल। तो इनको कहते हैं 4 गेट्स, एंड 4 गेट्स मींस LI4 bilateral, liver 3 bilateral, and 4 gates are very good number 1। 4 gates are very good number 1 to move the chi। ये ऊर्जा को घुमा देते हैं। To remove the blockage, to remove the blockage। And number 2, it is very good for sports injury। चोट लग गई हो उसके लिए बड़े अच्छे काम करते हैं। Number 3, it is very good for removing emotional blockages। अगर किसी को इमोशनल ब्लॉकेजेस हो उस पर भी अच्छा काम करते हैं।
सो दीज आर द वेरी गुड पॉइंट Li4 एंड लिवर 3 बायलैटरल, और ये पॉइंट 4 गेट के नाम से फेमस है. सो Li4, liver 3, bilateral, these points are famous with the name of 4 gate. तो हमने समझा कि liver 3 points is also very important points. Let's go to the next point, that is liver 8. अगर हम घुटने पर आते हैं, so हमारे घुटने पर हीसी पॉइंट और वाटर पॉइंट पाए जाते हैं, that we know. So on the knee we are having the हीसी point or water point. So the liver 8 point found here. Look at here. लिवर 8 पॉइंट कहाँ होता है? लिवर 8 पॉइंट हमारे घुटने पर होता है, हमारे घुटने की मीडियल साइड में होता है, इनर साइड में. सी, इट इज नॉट इन द फ्रंटल साइड, इट इज नॉट इन द लेटरल साइड, बट इट इज ऑन द मीडियल साइड. ये हमारे आगे नहीं होता, ये हमारे पीछे नहीं होता, ये हमारे अंदरूनी घुटने में होता है. सो दिस इज ऑन द मीडियल साइड एंड दिस इज कॉल्ड लिवर 8. इसका नाम है लिवर 8. लिवर 8 इज द वाटर पॉइंट ऑफ लिवर. लिवर 8 इज द वाटर पॉइंट ऑफ लिवर. So it is cooling down the liver. ये हमारे लिवर को कूल डाउन करता है. लिवर 8 इज द हीसी पॉइंट ऑफ द लिवर. हमने समझा था कि घुटने पर जो भी बिंदु होते हैं वो हीसी पॉइंट होते हैं, लाइक एनी पॉइंट इन द नी. जैसे हम लिवर की बात करें तो लिवर 8 होता है, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी 10 होता है, अगर हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन 9 होता है. दीज ऑल पॉइंट्स आर हीसी पॉइंट फाउंड ऑन द नी जॉइंट. हमारे घुटने पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी को हम हीसी पॉइंट कहते हैं. यिन में, यिन के मेरिडियन के ये वाले पॉइंट्स हम हीसी पॉइंट कहते हैं. यांग की बात हम करेंगे बाद में, वो भी हीसी होते हैं लेकिन उसकी बात हम सेपरेटली करेंगे. सो लिवर 8 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर कूलिंग डाउन द लिवर. हमने समझा कि लिवर में गर्मी बढ़ने से कितनी बीमारियां होती हैं. लिवर फायर इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो लिवर 8 इज कूलिंग डाउन द लिवर. लिवर 8 इज calming down the liver, increasing the water, increasing the coldness in the liver. So this is the wonderful point. अब बात ये आती है कि आखिरी बिंदु होता कहाँ है. लिवर 8 की लोकेशन कहाँ होती है? तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे, सो लुक एट दिस इमेज. सो वी आर हैविंग टेंडन गोइंग फ्रॉम हियर. हमारे यहाँ से टेंडन जाते हैं मीडियल साइड में. सो वी आर हैविंग मेनी टेंडन्स हियर, लाइक सेमी-टेंडिनोसिस, सेमी-मेम्ब्रेनोसिस, ऐसे टेंडन्स के नाम हैं. तो हमारे मीडियल साइड में दो टेंडन के बीच में लिवर पॉइंट पाया जाता है. सो लिवर पॉइंट फाउंड बिटवीन द सेमी-टेंडिनोसिस एंड सेमी-मेम्ब्रेनोसिस. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लिवर 8 फाउंड इन बिटवीन द सेमी-टेंडिनोसिस एंड सेमी-मेम्ब्रेनोसिस. हमारे घुटने की मीडियल साइड में होता है लिवर 8. सो लिवर 8 इज द वाटर पॉइंट, लिवर 8 इज द हीसी पॉइंट. और ये लिवर के लिए बड़ा ही अच्छा बिंदु है. लिवर को अच्छा टॉनिफाई करता है, लिवर में कूलिंग बढ़ाता है. इट इज डूइंग द टॉनिफिकेशन ऑफ द लिवर मेरिडियन एंड फाउंड ऑन द मीडियल साइड ऑफ लिवर, मीडियल नी. हमारे मीडियल साइड ऑफ नी में यह बिंदु पाया जाता है. वी कैन सी अदर इमेज. अगर आप इस इमेज को देखेंगे, यू विल ऑल्सो सी हियर. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लिवर 8. तो हमारे लिवर में जो आखिरी बिंदु है वो है लिवर 14. लिवर 14 is the last point of the liver meridian. लिवर में कुल 14 पॉइंट ही होते हैं and this is the last point. So liver having only 14 point and this is the last point, that is the liver 14. Liver 14 we can see found in the nipple line. ये हमारी nipple line में होता है. And nipple line having 4 chun distance from the center. तो अगर मैं पूछूं कि liver 14 कहाँ होता है तो आप बोलेंगे कि सेंट्रल लाइन से 4 चुन की दूरी पर. So this point found 4 chun away from the midline, and the liver 14 is the alarm point of liver. Liver 14 is the front mu point of the liver. हमारे liver का ये front mu point होता है. तो जब हम liver 14 को दबाते हैं और दर्द मिले तो समझ जाना कि liver में कुछ गड़बड़ी है. जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने इमोशंस को दबाता है, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत सप्रेस्ड रहता है, इमोशनली सप्रेस्ड, तो उसके अंदर लिवर ची की ऊर्जा का सप्रेशन हो जाता है. बिकॉज लिवर ची इज लाइक एयर हु वांट टू फ्लो ऑल द टाइम. द लिवर ची नेवर वांट टू स्टॉप, हु वांट टू कंटिन्यूअसली फ्लो ऑल द टाइम. लिवर ची इज लाइक एयर, बट बिकॉज ऑफ द इमोशनल ब्लॉकेजेस लिवर ची गेट स्टैग्नेंट. देन विद द हेल्प ऑफ लिवर 14 and liver 3, so liver 14 and liver 3 we can remove the blockages, we can remove the stagnation. तो हम लिवर ची के स्टैग्नेशन दूर कर सकते हैं. हालांकि और भी पॉइंट होते हैं स्टैग्नेशन को निकालने के लिए, बट राइट नाउ दीज
लिवर 14 पॉइंट इज द वेरी वंडरफुल पॉइंट. दिस पॉइंट फाउंड इन द निपल लाइन. ये हमारी निपल लाइन पर पाया जाता है. So now it become very difficult how to search this point. So very easy technique to search this point. See, nipple found, we are having multiple ribs here. हमारे यहाँ पर कितनी सारी पसलियां होती हैं. So liver, so nipple found below the fourth rib. निपल कहाँ होता है? निपल पाया जाता है चौथी पसली के नीचे. So nipple found below the fourth rib. So nipple found below the fourth rib, and liver 14 found below the sixth rib. This is the very easy way to find out. आपको rib को palpate करना होगा. So between the two ribs there is a space that is called intercostal space. हमारी दो पसलियों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस. इंटरकॉस्टल स्पेस से में ये बिंदु होता है. चलिए इससे भी एक आसान तरीका ढूंढते हैं इसको जानने का. सपोज दिस द नेवल, अगर हम समझे कि ये नाभि है. सपोज दिस द नेवल रीजन. इफ फ्रॉम द नेवल रीजन इफ यू कम 6 चुन अप, अगर आप नाभि से 6 चुन ऊपर आते हैं तो उसी के लेवल पर हमारा लिवर 14 पॉइंट पाया जाता है. सो लिवर 14 पॉइंट फाउंड एट द लेवल ऑफ 6 चुन फ्रॉम द नेवल. तो हमने क्या समझा? लिवर 14 फाउंड नंबर 1 इन द निपल लाइन. Number 2, it is the alarm point or front view point. Number 3, useful in liver Qi stagnation in blockages. Number 4, found below 6th rib or 6th intercostal space. तो इतनी बातें हमें ध्यान रखना होगी. और सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? सेंट्रल लाइन से 4 चुन की दूरी पर होता है. So we can put the needle very superficially on the needle on the liver 14, definitely, or we can do the acupressure here. We can put the seeds in the sujok. तो हमारी लिवर मेरिडियन का कंप्लीशन हुआ. अब हम बात करते हैं स्प्लीन मेरिडियन की. नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द स्प्लीन मेरिडियन. हमने लिवर में समझे लिवर 3, हमने लिवर में समझे लिवर 2, लिवर 3, लिवर 8 एंड लिवर 14. अब हम बात करते हैं स्प्लीन मेरिडियन की. सो द स्प्लीन मेरिडियन में हमारे जो पॉइंट्स हैं उसकी हम बात करते हैं. सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर हैविंग इन द स्प्लीन मेरिडियन? स्प्लीन 6, 9, 10 एंड 15. तो चलिए आज मैं आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, स्प्लीन 9 एंड 10, और कल हम बाकी 2 पॉइंट समझेंगे. सो टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्प्लीन 9 एंड स्प्लीन 10. सो वी नो इन द स्प्लीन मेरिडियन we are having total 21 points. हमारे स्प्लीन मेरिडियन में 21 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 पॉइंट हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस spleen 6, spleen 9, spleen 10 and spleen 15. But right now we are going to discuss spleen 9 and spleen 10, and tomorrow we will discuss these 2 points. तो चलिए हम बात करते हैं spleen 9 की. So in the 5 element cycle we are having spleen 1 is the first point, spleen 2 is the second point, spleen 3 is the third point, spleen 5 is the fourth point, and spleen 9 is the water point. Spleen 9 is the Hisi point. हमारा spleen 9 water point और Hisi point है ना. इसी कारण से spleen 9 को जब हम स्टिमुलेट करते हैं so it is the very good point for the spleen, because Hisi point means they are having huge amount of energy, huge amount of chi. And what is the spleen? The meaning of spleen is digestion. spleen का मतलब क्या है? spleen का मतलब है digestion. और वाटर का पॉइंट क्या है? वाटर का पॉइंट है द कूलिंग डाउन. तो सपोज किसी को अगर एसिडिटी है, someone is having acidity, someone is having burning stomach or anywhere anything because of the acidity, so just a single point, the spleen 9 is very effective. आप spleen 9 को स्टिमुलेट करके एसिड का सीक्रेशन कम कर सकते हैं. सॉरी. You can decrease the acid secretion. You can decrease the acid secretion. Why? Spleen 9. आप spleen 9 से acid का secretion कम कर सकते हैं. So it is a very good point because it is the water point. और कहाँ पर होता है? हमारे घुटने पर होता है. घुटने पर, तभी तो हम इसे Hisi point कहते हैं. So look at in this image. In this image we can see the location of spleen meridian. This is the
लोकेशन ऑफ स्प्लीन मेरिडियन, ये हमारे घुटने पर ही पाया जाता है। लेट्स सी इन द अदर इमेज। घुटने में हमारी एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं टिबिया बोन। सो ये हमारे टिबिया बोन के बॉर्डर पर होता है। So if you see in this image, you can see the location of spleen 9, but clear location we can see in this image. So this is the tibia bone, and on the upper border of tibia bone, ये हमारी टिबिया बोन है और इसके अपर बॉर्डर पर ये हमारा स्प्लीन 9 पॉइंट होता है। दिस इज द स्प्लीन 9 फाउंड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ टिबिया बोन। तो ये हमारे टिबिया बोन के अपर बॉर्डर पर होता है। एंड दिस द वाटर पॉइंट, दिस द हीसी पॉइंट, दिस द वेरी गुड पॉइंट फॉर द एसिडिटी। चलिए अब हम स्प्लीन का एक बिंदु समझते हैं जिसका नाम है स्प्लीन 10। अगर घुटने से हम 2 चुन ऊपर जाएं, इफ फ्रॉम द नी वी गो 2 चुन अप फ्रॉम द मीडियल कॉर्नर ऑफ द नी, सपोज ये हमारा पैर है, ये हमारे 2 पैर हैं। Okay, we will make the image other way here for clear understanding. So make the image here. So this is the knee. Now from the upper border of the knee, from the upper border of the patella, if I go 2 chun up, that is the location of spleen 10. Spleen 10 is very effective, found in the spleen meridian because it is very good point for allergy and blood. ये ब्लड और एलर्जी के लिए बड़ा अच्छा बिंदु है। सपोज किसी को एलर्जी हो गई और स्किन पर खुजली आ रही है, someone is having allergies and rubbing the skin because of the itching, so it is very good point for the allergy and blood. ये ब्लड और एलर्जी के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है because it is very good point for the blood, so it is also very good point for the anemia. अगर किसी के ब्लड सेल्स कम हो जाए, it is very good point. Not only for this, if someone is suffering with the blood stasis, हम जानते हैं कि ब्लड स्टेसिस एक ऐसी डिजीज है जिसे एक्यूपंक्चर के माध्यम से समझा जा सकता है। ब्लड स्टेसिस यानी ब्लड की रुकावट। जब ब्लड अटकता है, रुकता है, तो गांठें पैदा करता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ, जैसे कि ओवरी की गांठ, यूट्रस की गांठ, ब्रेस्ट की गांठ, प्रोस्टेट की गांठ, इन सभी गांठों के कारण है ब्लड स्टेसिस। तो ब्लड स्टेसिस का मतलब है कि एक नाली में पानी बह रहा था और अटक गया, अटका रहा अटका रहा अटका रहा, जब सदियों तक अटका रहा तो उसका पानी सड़ने लगा, काला हो गया, वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, तो वो जो ब्लैक जो पानी हो गया, अब हम उसको कहते हैं स्टेसिस। इन द सेम वे इन द ह्यूमन बॉडी, when the blood is flowing properly, energy is flowing properly, but energy gets stagnant, and slowly this become old, like after long time it is becoming too much stagnant and energy not at all flowing from that part, so that part develop nodules, that part develop tumor like polycystic ovary, like uterine tumor, like breast cyst and all. So there are lots of nodule are because of the blood stasis. So wherever we use the blood, we can use the spleen 10. जहां भी हम ब्लड की बात करेंगे वहां स्प्लीन 10 का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्लीन 10 जो बिंदु होता है वो हमारे घुटने से 2 चुन ऊपर पाया जाता है। So look at the knee. This is the upper corner of the patella. So look at the upper corner of the patella. So this is the upper corner of patella. From here it is 2 chun up in the medial side. So this is the knee. Okay, let's only 2 points left in the spleen meridian. So let's finish them also. हमारे 2 ही पॉइंट बचे हैं स्प्लीन में, चलिए उनको भी फिनिश कर लेते हैं। So let's see. अब हम बात करते हैं हमारे from the medial malleolus, from the midpoint of the medial malleolus, if we go 3 chun up. So this is the location of spleen 6. अगर हम medial malleolus से 3 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें spleen 6 मिलता है। Look at in this image, you can find very clearly. So spleen 6 found on the border of this tibia bone, and this point is 3 chun up. ये point कितनी ऊपर होता है? ये 3 चुन ऊपर होता है। So from the medial malleolus, this point found from the midpoint of the medial malleolus, this point found 3 chun up. That is the spleen 6. Why the spleen 6 is very good point? ये spleen 6 ज़्यादा महत्वपूर्ण point क्यों है? Because it is the meeting point. The spleen 6 is the meeting point of 3 yin meridian. It means the spleen meridian crossing this, the kidney meridian crossing this, and the liver meridian is also crossing this. So spleen 6 is the union point of liver, kidney and spleen. ये हमारे 3 मेरिडियन का यूनियन पॉइंट है। तो जब हम इस पॉइंट को टर्न करते हैं
एक साथ तीनों मेरिडियन टर्न हो जाते हैं. That's why spleen 6 is very wonderful point. And spleen 6 is the distal point of genital part. अगर किसी फीमेल को genital part में कोई भी तकलीफ होती हो, अगर किसी मेल को genital part में कोई भी तकलीफ होती हो, so this is the spleen 6 is the distal point of genital part. तो हमारे genital part के लिए बड़ा ही अच्छा है, because in the genital part 3 meridian are going. One is spleen, one is liver, one is kidney, and this is the union point of all the 3 meridian. So spleen 6 point is the very wonderful point for this genital part, and it is the distal point of genital part, spleen 6. तो हमने spleen 6 के बारे में बात की. And we do the regular moxa. हम इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हम हीट से इसे स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज स्प्लीन लाइक हीट, स्प्लीन को हीट मिलती है, तो स्प्लीन स्माइल करने लगती है. स्प्लीन बिकम वेरी हैप्पी व्हेन स्प्लीन इज गेटिंग द हीट, एंड स्प्लीन बिकम अनहैप्पी व्हेन इट इज अंडर द कोल्ड इन्फ्लुएंस. जब कोई व्यक्ति ठंडा खाना खाता है तो स्प्लीन कमजोर हो जाती है. So let's discuss the last point of the spleen meridian, that is spleen 15. That is the last point. That is a very wonderful point. Let's see here. अब हम spleen 15 की बात करेंगे, जो हमारा spleen meridian का और आज के डिस्कशन का आखिरी बिंदु है. So look at here. अगर from the navel, if I draw the horizontal line, from the navel, if I draw the horizontal line, this line is very good for intestine. ये लाइन आंतों की बीमारियों के लिए बड़ी अच्छी है. If I draw the line from the navel region, अगर मैं नाभि से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये पूरी की पूरी लाइन हमारी इंटेस्टाइन के लिए बड़ी अच्छी मानी गई है. इफ फ्रॉम द नेवल रीजन आई गो टू चुन प्रॉक्सिमल, टू चुन लैटरल, अगर मैं नाभि से 2 चुन बाहर जाता हूं तो मुझे मिलता है स्टमक 25, और मैं फिर से 2 चुन बाहर जाता हूं तो मुझे मिलता है स्प्लीन 15. सो फ्रॉम द नेवल रीजन इफ आई गो 2 चुन, that is the stomach 25. If I go again 2 chun, that is the spleen 15. And the stomach 25 and spleen 15, both points are good for intestine. ये दोनों points हमारी intestine के लिए बड़े अच्छे होते हैं. As per the acupuncture, the stomach 25 is the alarm point of intestine. ये तो हमारी intestine का alarm point है, यानी stomach 25 पर दर्द मिले तो समझ जाइए कि गड़बड़ी है. कहाँ पर? आंतों में. There may be some problem like colitis, like irritable bowel syndrome, like diarrhea, any problem in the intestine. In the same way, spleen 15 also doing the same action. Spleen 15 के भी वही काम है जो काम stomach 25 के एक ही लाइन में पाए जाते हैं. So if I ask you, tell me the location of spleen 15. Spleen 15 हमारी नाभि से 4 चुन की दूरी पर होता है. स्प्लीन 15 हमारी नाभि से 4 चुन की दूरी पर होता है. स्प्लीन 15 हमारी निपल लाइन में होता है, क्योंकि निपल लाइन भी 4 चुन की दूरी पर होती है. सो स्प्लीन 9, स्प्लीन 15, नंबर 1, इट इज इन द निपल लाइन. नंबर 2, इट इज इन द नेवल लाइन. तो ये नेवल लाइन में भी है, निपल लाइन में भी है. नंबर 3, ये 4 चुन बाहर है. नंबर 4, इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द इंटेस्टाइन. इसके साथ ही हमारा स्प्लीन मेरिडियन भी समाप्त हुआ. अब हम क्विज पर बढ़ेंगे आगे. तो अब मैं आपको क्विज दे रहा हूं. क्विज ओके. तो अब हम किसी को 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक चाहिए क्विज के पहले, कि हम क्विज स्टार्ट करते हैं. कैन वी स्टार्ट द क्विज? कैन वी स्टार्ट द क्विज? स्टार्ट. ओके फाइन. तो चलिए हम क्विज स्टार्ट करते हैं. और जो लोग एक्सेस कर सकते हैं वो वेबसाइट पे जाके, एप्लीकेशन में जाके क्विज करें. जिन लोगों को पता है कैसे करना है वो जाके करें. द क्विज नंबर लास्ट. बड़ा आसान है ओपन करना उसको. या तो आप मुझे ओपन. चलिए अब हम क्विज करते हैं यहां पर, ठीक है. 1 मिनट. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लोकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट हार्ट 5 इज. चलिए बताइए हार्ट 5 की लोकेशन कहां होती है? ये कल का बचा हुआ है.
हार्ट 5 की लोकेशन कहाँ होती है? हमारी कलाई से 1 चुन पहले 1 चुन प्रॉक्सिमल, हमारी कलाई से 2 चुन पहले 2 चुन प्रॉक्सिमल, हमारी कलाई से 3 चुन पहले 3 चुन प्रॉक्सिमल और हमारी कलाई से आधा चुन पहले। तो हार्ट 5 की लोकेशन कहाँ होती है? बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन सा होगा सही? हार्ट 5 कहाँ होता है? द लोकेशन ऑफ हार्ट 5, क्योंकि हार्ट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्पीच। हमारी आवाज को सुधारने के लिए बड़ा बिंदु, अच्छा बिंदु है। आप हार्ट 5 लगा लो तो आपकी आवाज एकदम से इंप्रूव हो जाती है। ऑलरेडी क्विज तो है ही, क्विज आप किसी को मिली, वेबसाइट में क्विज मिली किसी को? वेदर एनीवन गॉट द क्विज? यस यस, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड देयर, सो दोज हु कैन सी दे कैन डू देयर, और अदर पर्सन, और जो लोग नहीं कर पा रहे वो क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट करिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इफ यू आर अनेबल टू सर्च द क्विज, देन यू कैन contact me after the class. I will tell you how to do. Okay, so moving to the one chun proximal. So the answer is one chun proximal, location of acupuncture point heart 5. तो ये हमारा वन चुन proximal होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द लोकेशन ऑफ हार्ट 3 पॉइंट। हमारा हार्ट 3 पॉइंट कहां होता है? कलाई के रेडियल साइड में। रेडियल का मतलब है अंगूठे की ओर। सो द मीनिंग ऑफ रेडियल मीन्स टुवर्ड द थंब। सेकंड, द अल्नर साइड ऑफ द एल्बो। एल्बो के अल्नर साइड में, यानी छोटी उंगली की ओर। तीसरा, मिडिल ऑफ द एल्बो, हमारी कोहनी के बीचों बीच। और चौथा, पाम में। तो क्या आंसर होगा? हार्ट 3 पॉइंट कहां होता है, किधर होता है? आपको मीडियल और लेटरल नहीं बताना, आपको रेडियल और अल्नर बताना है। रेडियल और अल्नर, क्योंकि हाथ में रेडियल और अल्नर चलता है। So heart 3 point found on the radial side or on the ulnar side. तो देखो अंदर की तरफ होता है। So this is the small finger side. So this is the ulnar side. Okay. तो heart 3 point found toward the ulnar side. So this is the right answer. Perfect. So ulnar side will be the right answer. Question number next. Pericardium 7 located on, pericardium 7 कहां होता है? हमारे रिस्ट के मिडिल में, मिडिल ऑफ द वेंट्रल रिस्ट। हमारी पीछे, रिस्ट के पीछे की ओर बीच में, द मिडिल ऑफ द डॉर्सल रिस्ट। डॉर्सल यानी पीछे की ओर, वेंट्रल मीन्स आगे की ओर। दिस द वेंट्रल, वेंट्रल मीन्स आगे एंड डॉर्सल मीन्स पीछे। मीडियल टू द एल्बो, लेटरल टू द एल्बो कहां पर होगा? पेरिकार्डियम 6, बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। चलिए, वेरी गुड। सो द ऑप्शन नंबर 1 मीन्स आप सभी लोगों ने बोला है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 लगा देता हूं। मिडिल ऑफ द वेंट्रलिस्ट, यानी हमारी कलाई के ये मिडिल में पाया जाता है। दिस इज द वेंट्रल एंड दिस द मिडिल। दिस इज द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियम 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेरिकार्डियम 6 इज, पेरिकार्डियम 6 लोकेटेड एट। पेरिकार्डियम 6 कहां पाया जाता है? हमारी कलाई से 2 चुन पहले, हमारी कलाई से 3 चुन पहले, हमारी कलाई से 4 चुन पहले और हमारी कलाई से 2.5 चुन पहले। सो द टेल मी द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियम 6 कहां होती है? बताइए। आपको फिर से 10 सेकेंड का टाइम मिलता है।
वेब पर, जिसने वेब पर कर लिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड। सो द राइट आंसर इज टूचुन। तो ये हमारा ये पहला वाला आंसर। तो जिन्होंने वन लगाया वो भी सही, क्योंकि उनका मैं मान रहा हूं वो ऑप्शन नंबर वन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वन तो कहीं लिखा नहीं। और जिन्होंने टू चुन लिखा है वो भी सही। सो द टू चुन proximal फ्रॉम द रिस्ट। सो ऑल ऑफ यू आर राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लंग वन पॉइंट फाउंड। लंग वन कहां होता है बताइए। लंग वन पहला है लेटरल वन थर्ड, यानी लेटरल वन थर्ड और मीडियल टू थर्ड बिलो द कॉलर बोन। हमारी कॉलर बोन है, कॉलर बोन के लेटरल वन थर्ड यानी लेटरल साइड का वन थर्ड और मीडियल साइड का टू थर्ड का जंक्शन। तो ऐसे ऐसे देखिए कि कहां होता है लंग वन पॉइंट, कहां पाया जाता है इन चार ऑप्शन में से। तो देखिए आपको लेटरल मीडियल में कंफ्यूज नहीं होना है। लेटरल का मतलब समझिए, अगर ये हमारी कॉलर बोन है तो बाहर लेटरल है और अंदर मीडियल है, तो लेटरल से वन थर्ड। सो यही सही आंसर है। सो फ्रॉम द लेटरल से आप वन थर्ड आएंगे तो आपको मिलेगा लंग वन। तो चलिए आप 95% लोगों का आंसर सही है, 5% लोग कंफ्यूज हो गए। सो द आंसर विल बी द फर्स्ट वन, the lateral one third and the medial two third junction below the collarbone. Question number next, water point of the lung is। हमारे लंग का वाटर पॉइंट कौन सा होता है बताइए। इन चार ऑप्शन में से लंग का वाटर पॉइंट कौन सा है। लंग का वाटर पॉइंट लंग 11 कैसे होगा, लंग 11 कैसे होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि लंग 11 होगा। देखिए एक्यूपंक्चर में कुछ भी हो सकता है अगर आप उसे प्रूव कर दें तो। इफ यू आर एबल टू प्रूव देन एनीथिंग इज पॉसिबल इन द एक्यूपंक्चर, बिकॉज वी कैन सी द थिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। सो द आंसर विल बी लंग 5, क्योंकि वाटर पॉइंट का अर्थ है कि वो बिंदु जो हमारी कोहनी में पाए जाते हैं। द पॉइंट हु फाउंड द पॉइंट हु फाउंड इन द elbow, in the elbow. Even if you go in the sujuk also, where is the elbow? The middle joint is the elbow. And the middle joint, we are having lung 5 in the middle joint. In the index finger, in the middle joint, we are having lung 5. So lung 5 is the water point. Perfect. Good. चलिए, तो lung 5 हमने लगा दिया. Now we are proceeding for the next. वाटर पॉइंट ऑफ हार्ट इज, हार्ट का वाटर पॉइंट कौन सा है बताइए। इन चार ऑप्शन में से हार्ट का वाटर पॉइंट कौन सा है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, हार्ट 3। हार्ट 3 विल बी राइट ऑप्शन। परफेक्ट। चलिए हमारे कल के एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं। मेरिडियन हैविंग टोटल 11 पॉइंट्स, ऐसा कौन सा मेरिडियन है जिसमें 11 पॉइंट्स होते हैं। हार्ट, लंग्स, पेरिकार्डियम एंड ऑल, सभी में 11 होते हैं क्या, देखिए बताइए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू सी दिस? नहीं देख सकते अभी, आप नहीं देख सकते। ओके, नाउ यू कैन सी इट। सो द मेरिडियन फाउंड टोटल 11 पॉइंट, दैट इज लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन में हमारे 11 पॉइंट्स होते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। फायर पॉइंट ऑफ द लिवर इज, लिवर का फायर पॉइंट कौन सा है बताइए। टेल अस, टेल मी द फायर पॉइंट ऑफ द लिवर। लिवर का फायर पॉइंट कौन सा होगा। लिवर 1, 2, 3 एंड 8। तो आंसर विल बी
आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस यस यस, आई एम ऑडिबल। ओके, सो लिवर 2 विल बी द फायर पॉइंट। वेरी गुड, सभी ने सही बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पॉइंट फाउंड बिटवीन द मीडियल मेल्यूलस टू द एचिलिस टेंडन इज। हमारे पैरों में जो अंदर का मेल्यूलस होता है, मीडियल मेल्यूलस होता है, और पीछे का जो टेंडन होता है एंकल जॉइंट में, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट पाया जाता है वो कौन सा है? द पॉइंट फाउंड बिटवीन द मीडियल मेल्यूलस टू द एचिलिस टेंडन। एचिलिस टेंडन यानी हमारे एंकल का पीछे की ओर पाया जाने वाला टेंडन। अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने इस बारे में बताया था। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये एचिलिस टेंडन कहां होता है। एचिलिस टेंडन होता है हमारे एंकल जॉइंट के पीछे की ओर, एकदम जो कड़क टेंडन होता है उसे हम एचिलिस टेंडन कहते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो गए, तो हमें इसको मुझे बताना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, सो लुक एट हियर। सो पॉइंट फाउंड बिटवीन द medial malleolus and Achilles tendon. Look at this image. आप इस इमेज में देखिए ना, इस इमेज में ये है मीडियल मेल्यूलस और ये है एचिलिस टेंडन। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? वो किडनी 3 होगा। सो दिस इज द मीडियल मेल्यूलस and the backside tendon, this tendon is called Achilles tendon। और इन दोनों के बीच में ये बिंदु, इसका नाम है किडनी 3। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। So kidney 3 will be the right answer. Question number next. Point found in first or second bay margin of toes. हमारे फर्स्ट और सेकंड बे मार्जिन में कौन सा पॉइंट? हमारे पैरों के जो पहली और दूसरे अंगूठा और उंगली होती है उसके बे मार्जिन में कौन सा पॉइंट होता है? The point found in the bay margin. Liver 2, spleen 1, liver 3, kidney 2. So the option number लिवर 2। सो लिवर 2 होगा। हमारी पहली और दूसरी पैर की उंगलियों के बीच में जो बिंदु होता है वो होता है लिवर 2। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पॉइंट इंप्रूविंग सर्कुलेशन एंड यांग ची। वो कौन सा बिंदु है जो हमारे शरीर में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यांग ची को बढ़ाता है? किडनी 7, किडनी 3, Li2 एंड ऑल। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, बताइए और सोचिए। सो डेफिनेटली आंसर विल बी, इसमें देखिए Li, इसका आंसर होगा किडनी 7। द किडनी 7 इज द पॉइंट हु इज इंप्रूविंग द सर्कुलेशन एंड यांग ची। यही कारण है इसका प्रयोग हम स्वेलिंग में करते हैं, क्योंकि स्वेलिंग का मतलब है कि पानी का रुक जाना, अटक जाना। सो वी कैन मूव द ची। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पॉइंट लोकेटेड proximally on the union of first and second metatarsal bone is। हमारे पैरों में जो पहली अंगूठे के नीचे की हड्डी होती है और सेकंड उंगली के नीचे की हड्डी होती है, इन दोनों हड्डियों को कहते हैं मेटाटार्सल बोन। इन दोनों के यूनियन पर कौन सा पॉइंट होता है? इन दोनों के यूनियन पर कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट फाउंड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बे मार्जिन ऑफ द बोन। So look at in this image. So this is the first metatarsal bone. And this is the second metatarsal bone. And this is the union. On the union we are having liver 3. ये हमारा liver 3 point होगा। So liver 3 is the right answer. जिन लोगों ने liver 3 लगाया है उन लोगों ने सही बताया। Very good. Question number next. 4 gates points are, वो कौन से पॉइंट है जिन्हें हम कहते हैं 4 gate? 4 gate का मतलब है जो हमारे शरीर में
सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर दें, रिमूव कर दें, उन्हें हम 4 गेट्स कहते हैं। वो कौन से बिंदु हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। सो डेफिनेटली आंसर विल बी Li4 लिवर 3। जब भी किसी को चोट लग जाए, जब भी कोई गिर जाए, पड़ जाए, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, आप इन दोनों पॉइंट को जरूर लगाइए, इससे उसको फायदा मिलेगा। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द किडनी इज। किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट कौन सा है? वो कौन सा बिंदु है जिसका प्रयोग हम इमरजेंसी में करते हैं? किडनी की इमरजेंसी में किडनी 3, किडनी 7, किडनी 5 एंड किडनी 1। कौन सा बिंदु है जिसे हम किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा किडनी 5। किडनी 5 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट। और हमने आपको बताया था कि जब भी किडनी 5 पर दर्द मिले तो समझ जाना कि व्यक्ति को कोई ना कोई जेनेटल पार्ट की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्रीम पॉइंट ऑफ द लिवर मेरिडियन इज। हमारे लिवर मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट कौन सा होता है? लिवर मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट कौन सा है? तीसरे नंबर का पॉइंट कौन सा है? लिवर 3, लिवर 1, लिवर 2, लिवर 8? So the extreme point will be liver 3. Very good. All of you are so nice. Doing very good. Question number next. Source point R. इसमें से सोर्स पॉइंट कौन से हैं? यानी यौन सोर्स पॉइंट। लिवर 3, किडनी 3, स्प्लीन 3, लिवर 4, किडनी 4, स्प्लीन 4, लिवर 8, स्प्लीन 9, किडनी 10। ऑल कौन से बिंदु हैं जो किडनी से जुड़े हुए हैं? कौन से बिंदु हैं जिसके पास अपार मात्रा में ऊर्जा है? कौन से बिंदु हैं जो जिन्हें अगर हम टॉनिफाई करें तो वो मेरिडियन में ऊर्जा का लेवल बढ़ा देंगे? बताइए। सोर्स पॉइंट, सोर्स, यौन सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो किडनी से जुड़े हुए रहते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द किडनी। सो डेफिनेटली द आंसर विल बी फर्स्ट वन, लिवर 3, किडनी 3 एंड स्प्लीन 3। सो कांग्रेचुलेशन, हु हैज डन द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सू स्ट्रीम पॉइंट आर। बताइए कि इसमें कौन से बिंदु हैं जिन्हें हम सू स्ट्रीम पॉइंट कहते हैं, यानी थर्ड नंबर का पॉइंट। पहले पॉइंट जिंगवेल होते हैं, दूसरे स्प्रिंग होते हैं, तीसरे स्ट्रीम होते हैं। तो बताइए इसमें कौन से पॉइंट है जो स्ट्रीम पॉइंट है? लिवर 3, किडनी 3, स्प्लीन 3, लिवर 4, किडनी 4, स्प्लीन 4, लिवर 8, किडनी 10, स्प्लीन 9। ऑल टेल मी द राइट आंसर। आपको मिलेंगे 10 सेकेंड और सोचिए। So definitely the first one will be the right answer. Very good all of you. So nice. Question number next. अर्थ पॉइंट्स आर। बताइए कि इनमें से कौन से बिंदु हैं जिन्हें हम अर्थ पॉइंट कहते हैं, जैसे वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो पहला ऑप्शन है किडनी 3, स्प्लीन 3, लिवर 3, सेकंड किडनी 4, स्प्लीन 4, लिवर 4, थर्ड स्प्लीन 9, किडनी 10, लिवर 8। ऑल। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन से बिंदु हैं जिन्हें हम अर्थ पॉइंट कह सकते हैं? देखिए मैं सभी के देख रहा हूं, कुछ लोग एकदम साइलेंस हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली जवाब दे रहे हैं। सबको देना है, सबको रिप्लाई करना है। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन, आंसर विल बी पहला। तो अब देखा आपने कि देखिए हमारी किडनी के लिए अर्थ पॉइंट भी किडनी 3, किडनी के लिए सोर्स पॉइंट भी किडनी 3, और किडनी के लिए हमारा स्ट्रीम पॉइंट भी किडनी 3। इसका आंसर किडनी 3, स्प्लीन 3, लिवर 3। यानी अर्थ पॉइंट भी यही, सोर्स पॉइंट भी यही, और साथ ही साथ हमारे स्ट्रीम पॉइंट भी यही। तो बड़े गजब के पॉइंट होते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट यूजफुल टू काम डाउन द हाइपर एक्टिव लिवर यांग। जब किसी का लिवर यांग बढ़ जाता है उसको शांत करने के पॉइंट कौन से? जब किसी का लिवर यांग शांत करना हो, जब किसी का गुस्सा शांत करना हो, जब किसी का ब्लड प्रेशर कम करना हो, तो कौन से बिंदु हैं? So liver 2 and liver 3 are the best point for heart, the very good point for the BP. तो जब भी हम liver 3 को सेडेट करते हैं, they do very good role for blood pressure.
और हमारे गुस्से को शांत करते हैं। तो जो लोग भी ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके ये बिंदु आप हमेशा शेडेड करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाटर पॉइंट आर, इसमें से कौन से बिंदु है जो वाटर पॉइंट है? पहला स्प्लीन 3, लिवर 3, किडनी 3, देन लिवर 8, स्प्लीन 9, किडनी 10, लिवर 1, स्प्लीन 1, किडनी 1, ऑल। कौन सा ऑप्शन होगा? वाटर पॉइंट यानी जो पॉइंट हमारे घुटने के पास पाए जाते हैं, द पॉइंट्स इन द यिन मेरिडियन फाउंड ऑन द नी, वाटर पॉइंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाटर पॉइंट के द्वारा हम कूलिंग बढ़ा सकते हैं। लाइक स्प्लीन 9 इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी, किडनी 10 गुड फॉर किडनी cooling down the kidney, liver 8 cooling down the liver. So the second option, liver 8, spleen 9, kidney 10 will be the very good option. Okay, the question number next, Hisi point of the liver meridian is, हमारे liver meridian का Hisi point कौन सा है? बताइए। Hisi point 5 बिंदु होते हैं, जिंग वेल, यिंग स्प्रिंग, सू स्ट्रीम, देन जिंग रिवर एंड हिसी। कौन सा पॉइंट होगा? हिसी पॉइंट। Few more seconds. Very good, all of you. The liver 8 will be the right answer. Question number next. Front mu point of the liver meridian is, liver का front mu point कौन सा होगा? liver 1, liver 2, liver 14 and spleen 21. liver meridian का front mu point कौन सा है? वो कौन सा बिंदु है जिसे दबाकर हम पता कर सकते हैं कि लिवर में कोई पैथोलॉजी है या नहीं? फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ लिवर मेरिडियन इज, लिवर मेरिडियन का फ्रंट व्यू पॉइंट कौन सा है? सो राइट आंसर इज लिवर 14। लिवर 14 विल बी द राइट आंसर। हमने बताया था कि निपल की लाइन में होता है और छठवें इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। दिस पॉइंट फाउंड इन द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द निपल लाइन। दिस पॉइंट फाउंड फॉर्चून लेटरल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। हमारी सेंट्रल लाइन से 4 चुन लेटरल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट फाउंड मीडियल साइड ऑफ द नी, हमारे घुटने के मीडियल साइड में कौन सा बिंदु होता है? अंदरूनी तरफ कौन सा बिंदु होता है? स्टमक 36, लिवर 8, स्प्लीन 3, किडनी 3। सो दिस इज द, वी आर आस्किंग medial side of knee. Very good, all of you. The right answer will be liver 8. The question number next, liver 14 point found, liver 14 कहाँ होता है? 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में, 3rd इंटरकॉस्टल स्पेस में कि 1st इंटरकॉस्टल स्पेस में? और फॉर्चून लेटरल फ्रॉम द मिड लाइन तो सब में कॉमन है। तो बताइए लिवर 14 पॉइंट कहाँ होता है? कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है? कौन सी रिब के नीचे होता है? So the right answer will be definitely 6th intercostal space. Very good, all of you. The question number next, point useful in the liver chi stagnation is, liver chi stagnation के लिए कौन सा point useful है? liver 3, liver 14 both और liver 8? liver 3, liver 14 both और liver 8? हम liver chi के stagnation को, liver chi के stagnation को कैसे दूर कर सकते हैं? liver 3, liver 14 both और liver 8? Tell me the right answer. Tell me the right answer. So the right answer will be both. यहाँ पर हमारा both will be the right answer. So point useful in the liver chi stagnation. Very good, all of you. सबने both लगाया है. The question number next. Point improving bone density is, ऐसा कौन सा बिंदु है जो bone density को improve करता है? Liver 3, kidney 3, spleen 5 and all. वो कौन सा बिंदु है जो लिवर, जो हमारी हड्डियों की ताकत बढ़ाता है? The point improving the bone density is. तो हम सब जानते हैं कि कौन ऐसा है जो हमारी हड्डियों से जुड़ा है, हड्डियों से कनेक्टेड है। So the right answer will be kidney 3. Very good. Kidney is connected with the bones. Kidney is connected with the scalp hair. Kidney is connected with the genital parts. So the kidney 3 is very good point for improving the bone density. Question number next. Point useful in the blood related problem. ऐसा कौन सा बिंदु है जो ब्लड की प्रॉब्लम को दूर करता है? स्प्लीन 9, स्प्लीन 3, स्प्लीन 10 और ऑल? So the right answer will be, very good. Very good. Continue. Need more answers. So the right answer will be spleen 10. Very good, all of you. And this is the second last question. Spleen 10 found
2 चुन डिस्टल। स्प्लीन 10 कहां होता है? 2 चुन डिस्टल फ्रॉम द medial and superior corner of the patella, 2 चुन proximal, 3 चुन proximal, 3 चुन distal। हमारे घुटने के ऊपरी कॉर्नर से कहां होता है? 2 चुन नीचे, 2 चुन ऊपर, 3 चुन ऊपर, 3 चुन नीचे। तो हम जानते हैं कि स्प्लीन 10 हमारे घुटने के ऊपरी कॉर्नर से 2 चुन ऊपर होता है, यानी 2 चुन proximal होता है। So the right answer will be 2 chun proximal to the medial superior corner of the patella. So this is the right answer. Very good, all of you. This is the last question. Point useful in the skin allergies and anemia is, वो कौन सा बिंदु है जो हम स्किन एलर्जीज और एनीमिया के लिए यूज करते हैं? लिवर 1, स्प्लीन 10, लिवर 12 एंड ऑल। बताइए, स्किन एलर्जीज और एनीमिया के लिए कौन सा बिंदु यूज करते हैं? सभी को बताना, ये लास्ट क्वेश्चन है। So definitely the answer will be same like you are doing spleen 10. Spleen 10 will be the right answer. तो हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 के 30 सही है, एक भी गलत नहीं है। हम सब पास हो गए। वेरी गुड। हम सभी लोग आज फिर से पास हो गए, 100% मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने फिर से धमाल मचा दिया आज, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की एक भी गलत नहीं हो रहे हैं। इट इज वंडरफुल, वेरी गुड। और आपने देखा कि आप लोगों की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आप 10 सेकंड में क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं। कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, कुछ लोग करने वाले होते हैं, वो सब देखता हूं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज हमने 30 क्वेश्चंस किए, है ना? अब किसी को थोड़ी स्पीड कम ज्यादा लगी हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना, किसी को कम लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, किसी को तेज लगी हो तो थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे। अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।